echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ this morning. प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। As you are aware, we have a great church ministry and church planting ministry all over the country of India. और शायद आप लोग को पता हो कि हमारे कलीसिया का सेवकाई भी है और कलीसिया रोपण करना वो भी भारत में अलग अलग जगह में हो रहा है। People from different culture and languages join together in various parts of the country and worshiping the Lord. भारत में कई अलग अलग गोष्ठी, अलग अलग जाति लोग शामिल हो करके परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। It is really a wonderful experience. ये हमारे लिए एक अनोखा अद्भुत अनुभव है। All the pastors and believers of the churches join together and sending their love to you. उन सारे विश्वासी और पासवान मिल करके आप सभी को नमस्कार ज्ञापन करते In हैं। Genesis chapter 31:3, God says, "I will be with you." परमेश्वर इस प्रकार कहता है, उत्पत्ति उसका 31:3 में इस प्रकार लिखा गया, और मैं तेरे संग रहूंगा। When we are passing through great troubles and sickness in this world, we expect someone who loves us to be with us. और जब हम इस संसार में दुख और तकलीफ और समस्या से हो करके जाते हैं, उस समय आशा करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमें प्रेम करता है वो हमारे साथ रहे। But unfortunately, by experience, I have seen it is not possible all the time. पर वो लोग हमेशा हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं। It is not happening all the time. और ये सारे घटना हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। There is a reasonable reason for that. और एक कारण भी है। All our friends and relatives have their own problems and difficulties in their life. क्योंकि हम लोग, हमारा जितने भी रिश्तेदार है, मित्र है, उन लोगों के पास उन लोगों का समस्या, निजी समस्या है। They have to take up their crosses and face problems in this उन world. लोगों का की समस्या, उन लोगों का क्रूस को अपने अपने लोग उठाना चाहिए। It is not happening all the time. और ये सारे घटना नहीं हो पा रहा It है, will not happen all the time. और ये सर्वदा नहीं हो पाता है। Sometimes we are left alone. कभी कभी हम लोग की अकेला के हो जाते हैं। Some people, when they are getting old, they are left alone. जब कोई व्यक्ति या कोई लोग बूढ़ा हो जाता है, उसको वो अकेला लोग छोड़ देते हैं। Sometimes when we are sick, we are left alone. जब हम बीमार में पड़ते हैं तब लोग भी हमें छोड़ देते हैं। People, those who are in the jails, are left alone. जो लोग जेल में बंदी में हैं, उन लोग भी अकेलापन को महसूस करते हैं। Whatever situation may be, the Lord Jesus Christ is willing to be with you in all the times of your life. चाहे आप लोगों का या लोगों का जिस प्रकार का परिस्थिति होना क्यों, परमेश्वर इस प्रकार वायदा करते हैं वो हम लोगों के साथ रहने के लिए। Through Genesis chapter 31 verse 3, God, the Lord Jesus Christ, promises that He will not leave you alone. और परमेश्वर उत्पत्ति उसका 31:3 में इस प्रकार वायदा करता है, वो आप लोगों के कभी नहीं छोड़ेंगे और वो कि आपके साथ रहेंगे। This morning you should remember this reality all the times of your life. और ये वायदे को आप लोग हमेशा याद रखना You should चाहिए, understand the fact. और ये बातों, ये सच्चाई को हमें जानना है। Not only today, throughout your life, the Lord Jesus Christ is willing to be with you. और आज ही नहीं कि आपकी जीवन में आने वाला दिनों में हमेशा के लिए वो आप लोगों के साथ He रहेंगे। promises that He will not leave you comfortless. क्योंकि उन्होंने वायदा किया वो कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ने के He लिए। will come to you not only in the time of need and also all the times of life. और वो आपका जब जरूरत होता है तब ही नहीं, पर आपका हर एक बातों में वो आपके साथ आने के लिए तैयार है। He can be with you when you are walking. जब आप बाहर जाते वो आपके साथ रहेंगे। He will be with you when you are traveling. जब आप यात्रा करते उस समय भी आपके साथ होंगे। He will be with you when you are doing your job today. जब आप किसी के काम को करते उस समय भी आपके साथ He will be with रहेंगे। you today when you are doing His ministry. और जब आप उसकी सेवा को कर रहे हैं वो आपके साथ रहेंगे। In whatever situation you may be. चाहे आपका
जो भी परिस्थिति हो ना क्यों, He is promising that He will be with you. वायदा करता है वो आपके साथ रहने And के He लिए, is going to bless you today. और वो आज भी वायदा करता है आपको आशीषित करने के Join लिए, hands with Him. और उसके साथ हाथ मिलाइए Have a good life with Him. और उसके साथ संबंध को I बनाइए। want to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for the wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You have enabled to pray with my brothers and sisters from various parts of the world right now. प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस सुंदर मौका दिया कि भारत और भारत बाहर से अलग अलग लोगों के साथ मिल करके प्रार्थना करने Even के लिए। though we are not able to see each other now, we are able to be in one spirit and look unto your face right now. शायद हम लोग एक दूसरे का मिल नहीं पा रहे, फिर भी हम आत्मा से एक हो करके उन सारे लोगों से हम प्रार्थना कर रहे Lord, हैं। as your servant, I bless all my brothers and sisters who have joined this prayer right now. और आपका दास होने के नाते जितने सारे भाई और बहनें इस प्रार्थना में योगदान किया, उन सारे लोगों को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उन लोगों को आशीषित It is my honest prayer, faith, that you should take care of these brothers and sisters throughout this day and bless them. हम विश्वास करते हैं उन सारे भाइयों और बहनों को आप आशीषित करोगे और आप उन लोगों के साथ And I रहोगे। ask you to meet all their needs right now. प्रभु, मैं मांगता हूं कि उन सारे भाई और बहनों की जरूरत को पूरा कीजिए। Thank you, Lord, for the wonderful provisions you have made for today for these brothers and sisters. और धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आज कि इन सारे भाई और बहनों के ऊपर जितना भी आप उपाय किया, योजना किया है, In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैयों में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमिया। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमिया। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.